Our today's topic is cerebrovascular accident. It is also called as stroke or the brain attack. These are the vessels of the brain. When there is any clot formation, either thrombus or embolism in this vessel, or when this vessel rupture, these may cause the cerebrovascular accident. After our introduction, cerebrovascular accident is any functional abnormality of the central nervous system. जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी होगी, then that occur when the normal blood supply to the brain is disrupted, है ना. वो कब होगी? जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी. तो स्ट्रोक इज द प्राइमरी सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इन द वर्ल्ड, है ना. मैक्सिमम वर्ल्ड या यूनाइटेड स्टेट में जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज स्ट्रोक. Stroke is still the third leading cause of death. Then the anatomy and physiology of nervous system. Nervous system is divided into central nervous system or peripheral nervous system, and the artery which supply the blood to the central or peripheral nervous system are the two internal carotid artery or two vertebral arteries. After that, the definition of stroke. Stroke is also called as cerebrovascular accident. It occurs when the blood supply to the part of brain is disrupted. जब brain tissues को proper blood supply नहीं मिलेगी, they lack oxygen, then causing brain cell to die, which may lead to brain cells to die, है ना, due to deficiency of the oxygen. So it is sometimes called as brain attack. Severe brain attack is a sudden loss of function of the brain tissue resulting from disruption of blood supply to the part of the brain. Mainly जब brain tissues को blood supply नहीं मिलेगी, they lack oxygen, due to which there is a death of the brain tissue. The incidence, the percentage is high for people age 65 or older, because due to the changes with age, the blood vessel, the walls of the blood vessel may become thin, and of those who survive 50 to 70% will be functioning independent, है ना. जो जैसे नॉर्मल बताया है कि 65 या ओल्डर एज में देखा गया है, और उसमें से जिनको ब्रेन अटैक आएगा 50 to 70% इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड कर देते हैं, बट जो 15 to 30% केसेस होते हैं दे आर हैविंग परमानेंट डिसेबिलिटी. After that, the sex. Stroke is more common in men than in the woman. Then the types of stroke. Stroke can be classified into ischemic stroke or hemorrhagic stroke based on the underlying pathophysiological finding. As the name indicate, ischemic मतलब lack of oxygen. It might be due to thrombus or embolism, or hemorrhagic is due to the blood rupture of the blood vessel. There will be bleeding. We will study ischemic stroke, and ischemic stroke result from inadequate blood flow to the brain. ब्रेन को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा फ्रॉम पार्शियल और कंप्लीट ओक्लूजन. जो ब्लॉकेज है इट माइट बी पार्शियल और कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाइंग द ब्लड टू द ब्रेन. These account for approximately 80% of all stroke. 80% जो stroke के cases हैं they are the ischemic stroke, कि blood vessel में clot formation हो गया या तो embolus formation हो गया which block the flow of blood. Ischemic stroke are further divided into thrombotic and the embolic. Thrombotic stroke occur from injury to the blood vessel. जब blood vessel wall को injury होगी तो क्या है, blood clot की formation होगी which lead to thrombotic stroke. जो blood vessel का lumen है it become narrowed and becomes occluded, infarction occur. क्लियर हो गया है ना. जब ब्लड वेसल को इंजरी होगी, ब्लीडिंग होगी, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लॉटिंग की वजह से वेसल नैरो हो जाएगी, पार्शियल नैरोइंग हो जाएगी. थ्रोम्बोसिस डेवलप रैपिडली वेयर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग हैव ऑलरेडी नैरोड ब्लड वेसल. थ्रोम्बोसिस ज्यादातर कहाँ देखा गया है, जहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हुई, कि फैटी डिपोजिशन ब्लड वेसल में हुई है, वहां पे ज्यादा ये देखा गया है. थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक विच इज द रिजल्ट ऑफ थ्रोम्बोसिस और नैरोड ब्लड वेसल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रोक. तो ये मोस्ट कॉमन है. पार्शियल स्ट्रोक ज्यादा होता है. 2/3 ऑफ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन और द डायबिटीज मेलाइटिस. आफ्टर दैट नेक्स्ट है एम्बोलिक स्ट्रोक. It is another type of stroke. It may occur when the blood clot or a piece of atherosclerotic plaque, that is cholesterol and calcium, deposit on the wall of inside of the heart.
artery and breaks loose, travel through the blood stream and lodges into the artery in the brain. है ना, इसमें क्या है कि जो प्लेग फॉर्मेशन हुई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल है या कैल्शियम डिपॉजिट है या ब्लड क्लॉट है, ठीक है, फॉर्म कहाँ हुआ, हार्ट में फॉर्म हुआ, बट वहां से ब्रेक होके ब्लड वेसल में ट्रेवल करके इट मे रीच टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन तक ये पहुंच गया. व्हेन ब्लड फ्लो स्टॉप, जब ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगी, ब्रेन टिश्यू डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दे रिक्वायर टू फंक्शन, बिकॉज जो ब्रेन टिश्यू है दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, अदरवाइज देयर विल बी परमानेंट डेथ ऑफ द ब्रेन टिश्यू एंड द स्ट्रोक अकर. दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज रेफर्ड टू एज द एम्बोलिक स्ट्रोक. क्लियर हो गया. थ्रोम्बोटिक में मतलब जो ब्रेन में ही ब्लड वेसल है वहीं पे इंजरी हुई, वहां पे ही क्लॉट फॉर्मेशन होगी. बट एम्बोलिक स्ट्रोक कहीं और पे एम्बुलस फॉर्म होगा, इधर क्लॉट है या कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल है, तो इट मे ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल अप टू द ब्रेन एंड कॉज ब्लॉकेज इन द ब्रेन आर्टरी. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हेमरेजिक स्ट्रोक. ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू or the subarachnoid space causes the hemorrhagic stroke. Hemorrhage means bleeding. After that, the etiology, modifiable risk factor और non-modifiable risk factor. Non-modifiable मतलब जिनको हम modify नहीं कर सकते हैं. It include age more than 65 year, gender more in man than the woman, race अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री हेरिडिटरी है, अगर हेरिडिटरी किसी को हुआ है तो उसको ज्यादा चांसेस हैं. आफ्टर दैट मतलब अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो आगे जो ऑफ स्प्रिंग है उनको ज्यादा चांसेस है. आफ्टर दैट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, मॉर्निंग वॉक. तो दिस इंक्लूड हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और स्मोकिंग. Smoking also constrict the blood vessel and hypertension is the cause of hemorrhagic stroke. Then the ischemic stroke के क्या causes हैं? Thrombosis है ना, clot formation होना, cerebral embolism ट्रैवल करता है, थ्रोम्बस स्टेबल होता है, ये ट्रैवल नहीं करता. सेरिब्रल इस्कीमिया या एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स प्लेग फॉर्मेशन इन द आर्टरी. आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक आर सेरिब्रल हेमरेज है ना, ब्रेन आर्टरी में हेमरेज होना. आफ्टर दैट हाइपरटेंशन. ड्यू टू हाइपरटेंशन देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो due to which the rupture in the blood vessel occur. Weakness of the vessel wall or cerebral aneurysm. Aneurysm में क्या होता है, जो blood vessel है आउटपोचिंग हो जाएगी, जहाँ से blood vessel की आउटपोचिंग हुई है वहाँ से walls weak हो जाएंगी, they are more prone for rupture. After that vascular sources में same intracranial artery thrombosis, aortic arch, atherosclerotic plague or transient hypotension with carotid stenosis. Then the clinical manifestation. Clinical manifestation में visual field deficit है. visual field deficit में hemianopsia. Hemianopsia means loss of half of the visual field. एंड देन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. पेरिफेरल विजन कौन सा होता है, जो साइड में हमें चीजें दिखाई देती है ना, लाइक है कि हम फ्रंट में देख रहे हैं बट जो साइड का विजन है दैट इज द पेरिफेरल विजन, ठीक है, मतलब जो लेटरल साइड पे हमें थोड़ी बहुत चीजें दिखाई देती है तो वो विजन लॉस हो जाएगा. डिफिकल्ट सीइंग एट नाइट एंड अनअवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और द बॉर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट के बॉर्डर्स हैं उसके बारे में अनअवेयर होंगे. डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन. और अदर सिम्टम इंक्लूड हेडेक, नमनेस और वीकनेस. आफ्टर दैट द मोटर डेफिशिट, ठीक है, इट अफेक्ट द मोटर, सेंसरी, विजुअल, बिकॉज ब्रेन कंट्रोल ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो मोटर डेफिशिट में हेमीपैरेसिस मीन्स हेमी मतलब हाफ, पैरालिसिस ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी. तो वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म, लेग ऑन द सेम साइड ड्यू टू अ लीजन इन द अपोजिट हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब एक साइड में जहाँ पे लीजन है उसके अपोजिट साइड में वीकनेस हो जाएगी. हेमी
हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द सॉरी हेमीपैरेसिस मतलब वीकनेस होना, और हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस. तो इट मीन्स द पैरालिसिस ऑफ फेस, आर्म, लेग ऑन द सेम साइड ड्यू टू अ लीजन ऑफ द अपोजिट हेमिस्फेयर. अगर राइट हेमिस्फेयर में लीजन है तो जो लेफ्ट साइड है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा हेमीप्लेजिया में, और हेमीपैरेसिस में वीकनेस हो जाएगी. देन अटेक्सिया. अटेक्सिया में क्या होता है? डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की. अगर किसी पर्सन ने चलना है तो उसका जो गेट है, ठीक है, वो डिफेक्टेड हो जाएगा. अनस्टेडी गेट, अनएबल टू कीप फिट टुगेदर, नीड अ ब्रॉड बेस टू स्टैंड. ठीक है, मतलब दोनों पांव इकट्ठे रख के नहीं चल पाएगा पर्सन, नहीं रख पाएगा पांव इकट्ठे, कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाएगा अटेक्सिया में. डिसअर्थरिया, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड. डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing. डिसअर्थरिया क्यों होगा? ड्यू टू द प्रॉब्लम विद द मसल्स यूज्ड इन द स्पीच. ठीक है, विच मे लीड टू डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड्स. आफ्टर दैट सेंसरी डेफिशिट. सेंसरी डेफिशिट इंक्लूड पैरेस्थीसिया. पैरेस्थीसिया मीन्स नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, है ना. इट अकर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लीजन. आफ्टर दैट वर्बल डेफिशिट. वर्बल डेफिशिट में एक्सप्रेसिव एफेसिया. एक्सप्रेसिव एफेसिया में क्या होगा कि जो पर्सन है, द पर्सन इज अनेबल टू फॉर्म वर्ड दैट आर अंडरस्टैंडेबल, है ना. वो वर्ड ही फॉर्म नहीं कर पाएगा जो दूसरा इंसान समझ पाए. एंड मे बी एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड रिस्पॉन्सिव. वर्ड मतलब थोड़े बहुत वर्ड बोलेगा बट वो भी समझ में नहीं आएंगे. और रिसेप्टिव एफेसिया में क्या होगा कि जो कॉम्प्रिहेशन है, ये जो सेंटेंस है वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा. अनेबल टू कॉम्प्रिहेंस द स्पोकन वर्ड्स, स्पीक बट मे नॉट मेक सेंस. क्लियर है? इसमें जो वर्ड है वही वो सिर्फ वर्ड्स बोलेगा, बट वो भी कैसे होंगे? अनअंडरस्टैंडेबल होंगे. ठीक है. और जो रिपीटिव एफेजिया है उसमें काफी ज्यादा वर्ड बोलेगा पर उनके बीच में कोई कॉम्प्रिहेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई सेंस फॉर्म नहीं होगी. ग्लोबल और मिक्स्ड एफेजिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सप्रेसिव एफेजिया और रिसेप्टिव एफेजिया. After that, cognitive deficit include short or long-term memory loss, decreased attention span, impaired ability to concentrate, poor abstract reasoning, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पुअर होगी, और अल्टर्ड जजमेंट. जो पर्सन की जजमेंट है वो ऑल्टर हो जाएगी. इमोशनल डेफिशिट. इमोशनल डेफिशिट इंक्लूड लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल लायबिलिटी, डिक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, डिप्रेशन, विड्रॉल, फियर, हॉस्टिलिटी एंड एंगर. एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा पर्सन. फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. After that, the assessment and diagnostic finding. But assessment should be done in case of severe cerebrovascular accident. It include health history. Past health history can be taken regarding hypertension, previous stroke, aneurysm, cardiac disease, dysarthria, heart failure, वॉल्वुलर डिसीज, इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. मतलब जो कोई मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे रिगार्डिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और सीएडी. बिकॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो प्लेग फॉर्मेशन होगी जब वो डिटैच होगा, इट कॉजेज द एम्बोलिटिक स्ट्रोक. After that, medication, use of oral contraceptive, use of antihypertensive, anticoagulant therapy. And nutritional history can also be taken regarding the anorexia, nausea, vomiting, dysphagia, altered sensation of taste and smell. And then cognitive perceptual history. इसमें क्या करेंगे? नमनेस चेक करेंगे, टिंगलिंग ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज इसमें जो लिसन के अपोजिट साइड का पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा. लॉस ऑफ मेमोरी, अल्टर्ड इन स्पीच, पेन, हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंसेस. इनसे हिस्ट्री लेनी है. आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन. इन दिस ग्लासगो कोमा स्केल कैन बी चेक्ड. द मिनिमम स्कोर इज 3 और योर मैक्सिमम स्कोर इज 15, है ना. द ग्लासगो कोमा स्केल. वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स और आई ओपनिंग रिस्पॉन्स शुड बी checked. And cognitive function, orientation can be checked, and abstract thinking can be checked. Speech में aphasia
हैड अदर प्रॉब्लम। एफेसिया में क्या है कि जो पर्सन है या तो उसके वर्ड अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, या तो जो ज़्यादा वर्ड बोलेगा बट उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मीनिंगलेस होंगे। देन ब्लड टेस्ट इंक्लूड ब्लीडिंग टाइम, clotting time, blood cholesterol, sugar level, blood clotting, and CBC count can be checked. After that, the other diagnostic tests include CT scan, MRI, CTA, computed tomographic angiography, or magnetic resonance angiography. CT scan, MRI are used to determine the type of stroke, hemorrhagic stroke है, ischemic stroke है, and the size and the location of the hematoma. And in case of angiography, the dye is injected into the vein, and then images of the blood vessel of the brain can be taken. And after that, electroencephalography, it is the graphical representation of the brain tissues, and cerebral angiography can be done. And cerebrospinal fluid analysis with the help of lumbar puncture. X-ray can be done. X-ray of the skull or the spine can also be done here. After that, मैनेजमेंट इंक्लूड गोल में है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली डायग्नोसिस की। जो स्ट्रोक है उसको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आइडेंटिफाई करना और डायग्नोस करना। प्रिजर्विंग सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन की ब्रेन टिश्यू को कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मिले, उसको प्रिजर्व करके रखना। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, पर्सन की क्या है जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करना है। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट, जब पेशेंट थोड़ा रिकवर हो जाएगा उसके बाद क्लाइंट के जो मैक्सिमम बॉडी फंक्शन है उनको अटेन करवाना कि वो रिहेबिलिटेट कर पाए। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड आइडेंटिफाई स्ट्रोक अर्ली, है ना, कि सबसे पहले स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने की पेशेंट को ये स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक का अटैक पड़ा है, ब्रेन अटैक पड़ा है, तो एंड चेक द लोकेशन एंड द साइट ऑफ द इन्फाक्ट। ठीक है, कि कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, कौन से एरिया में इन्फेक्शन हुआ है वो चेक करना है। एंड मेंटेन सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन, ब्रेन टिश्यू को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई देना है। इट इंक्लूड द पेटेंट एयरवे, जो पेशेंट का एयरवे है वो ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन होना चाहिए। हेड शुड बी एलिवेटेड and oxygen should be supplied continuously, oxygen supply देनी है। After that, platelet inhibiting medication, it include aspirin, it is also called as the blood thinner, and dipyridamole 400 mg per day can be given. After that, anticoagulants such as heparin can be given. Thrombolytic therapy break the clot and restore blood flow, है ना। जो एंटीकोगुलेंट है वो आगे न्यू क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, बट जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है वो जो ऑलरेडी क्लॉट फॉर्म हो गया उसको वो ब्रेक कर देगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV fluid, because if there is any type of hemorrhage, the person may goes into the hypovolemic shock, so provide IV therapy. And anti-seizure agent often administered to prevent the seizures. Analgesic can also be administered. After that, surgical management include carotid endarterectomy. इसमें जो प्लेग फॉर्मेशन हुई है उसको रिमूव करना है, तो इट इज द रिमूवल ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग और थ्रोम्बस फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में अगर प्लेग फॉर्मेशन हुई है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ है, तो उसको रिमूव करेंगे टू प्रिवेंट द स्ट्रोक इन पेशेंट विद occlusive disease of the extracranial cerebral arteries, because it may lead to partial or complete blockage. So the procedure is called as carotid endarterectomy. You should learn its name. आफ्टर दैट, रिहेबिलिटेशन आफ्टर द स्ट्रोक के बाद पर्सन को क्या है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका पैरालिसिस हुआ है, हाफ ऑफ द बॉडी कंप्लीट पैरालिसिस हुआ, फिजिकल मोबिलिटी नहीं कर पाएगा, तो उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। तो इन दिस अर्ली प्री मोबिलाइजेशन एफर्ट आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट और द इमोबिलिटी, है ना, ताकि जो पर्सन है कंप्लीट इमोबाइल ना हो, ठीक है, मूवमेंट ना कर पाए, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट ना हो जाए, उसके लिए जितना जल्दी अर्ली प्री मोबिलाइजेशन की जितने जल्दी हो जाए पेशेंट को मोबिलाइज करवाना है, उसको मूवमेंट करवानी है। आफ्टर दैट द फिजिकल थेरेपी,
It help in the stretching and strengthening of the weak muscle, है ना. फिजिकल थेरेपी मूवमेंट करवाएंगे ताकि जो पेशेंट की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए. आफ्टर दैट ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू लर्न activity of daily living, for example bathing, toileting, dressing, etc. and speech therapy, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्पीकिंग डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट वर्ड्स नहीं बोल पाएगा, है ना, ड्यू टू द वीक मसल्स. जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी जिस वजह से पर्सन स्पीच प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा. तो टू स्ट्रेंथन द मसल ऑफ द फेस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीच एंड swallowing. आफ्टर दैट द नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, मूवमेंट्स चेक करनी है, स्टिफनेस ऑफ नेक चेक करनी है. ग्लास्को कोमा स्केल शुड ऑल्सो बी चेक्ड बाय आई ओपनिंग, पिपलरी रिस्पॉन्स चेक करेंगे, एंड पेशेंट एबिलिटी टू स्पीक should be checked, and quality and rate of pulse, respiration, ABG value can be checked, and presence of bleeding, maintenance of blood pressure within the desired parameter. Blood pressure of the patient is also checked. After that, the nursing diagnosis, it include ineffective cerebral tissue perfusion, because में इनके हाइस में जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, तो जो डायग्नोस है दैट इज ineffective cerebral tissue perfusion related to decreased cerebral blood flow secondary to the thrombus, and impaired physical mobility related to hemiparesis, loss of balance or the coordination, spasticity and the brain injury, acute pain related to hemiplegia or disuse of extremity, self-care deficit related to the stroke, disturbed sensory perception related to altered sensory perception. तो this is all about the topic. Today we had discussed about the definition of cerebrovascular accident. It is also called as brain attack, and is the sudden loss of function resulting from the disruption of blood supply to the part of the brain. So then the types of stroke, it is mainly of two type: ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ischemic stroke is also of two type: thrombotic stroke or embolytic stroke. After that, the etiology, ischemic stroke की अदर है और hemorrhagic की अदर, and modifiable factor or non-modifiable factor. After that, the clinical manifestation include motor deficit, sensory deficit, visual deficit, and other symptoms. After that, diagnostic evaluation include history collection, physical examination, CT scan, MRI, neurological examination, lumbar puncture, and blood test. And then the management goal is to early identification and early diagnosis of stroke, preserving cerebral oxygenation, preventing complication, rehabilitation of the client, and medical management or surgical management include carotid endarterectomy. This is all about the topic.